Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So today the meditation is on tapasya. Your last time meditation was seeing Lord face to face. There is a very famous shloka in Upanishad. Uttishta Jagrata. Uttishta Jagrata. Then Prapya Varam Nibodatam. Go word by word. Arise! Uttishta means get up. Get up. Jagrata. Wake up. Wake up. You know, people, if you want to make foolish followers, we can speak what crowd wants to entertain the crowd. Then there is no need to preach. Preaching means you want to tell them something which they do not know. Correct? Yes, arise, work hard, enjoy your senses till your goal is achieved. It is there. All the colleges I see that. Correct? Arise, awake, and work hard till the goal is achieved. The shloka does not say that. Therefore, you need a proper guru if you want to learn anything. Anna? This is not what the Shastra. Shloka says something more. Uttishta Jagrata. Huh? First is get up and wake up. Then Parapya. Prapya means you have achieved. Prapya means you have achieved. What? Varam. Great boon. What is the boon you have achieved? What the boon it is talking about? Human form of body. Arise. Sometimes we are getting up, after that also we are like that. So it says get up. And wake up. Both the things he has said. Uttishta Jagrata. Prapya Varan Nibodat. Nibod is used to understand. Please understand properly. So arise and awake and understand you got a vara. समझ आया? It says, आप उठिए. What are the two words different? Uttishta Jagrata. What are two Hindi words different from that? उत्तिष्ठ का मतलब उठना. जागृत मतलब हाँ उठिए और जगिए. प्राप्य आपको बहुत बड़ा चीज मिला है. क्या? वर. बहुत बड़ा. आपको प्रभुपाद जी बोलते थे बून. बून. बून मतलब बहुत बड़ा एक स्पेशल चीज मिला है. हाँ, आशीर्वाद. निबोधत. सोचिए इसके बारे में. I was seeing what the word Prabhupada says for Niboda, to think very carefully about it. इसके बारे में ध्यान से सोचिए कि आपको एक बहुत बड़ा वर मिला है. उठिए उठिए. क्या हम लोग क्यों उठे नहीं हैं अभी? उठे नहीं हैं अभी. एक्चुअली आत्मा सो रही है अभी. खाली इंद्रियां उठी हैं अभी. मन उठा है, बुद्धि उठी है, लेकिन आत्मा नहीं उठी है ना. इसलिए बोलते हैं ना, वेकअप वेकअप तमोसो मा ज्योतिर्गमा. किसकी बात कर रहे हैं वो? आपके वो अंधकार की बात नहीं कर रहे, मन के अंधकार की, आत्मा के अंधकार की बात कर रहे हैं. ठीक है. उठना किसको बोल रहे हैं? आत्मा को. मन तो उठा हुआ है, शरीर भी उठा हुआ है, नहीं तो सुनोगे कैसे ये सब? उत्तिष्ठ जागृत वरम. आपको बहुत बड़ा एक वरदान मिला है, उसके बारे में सोचिए. क्या वरदान मिला है? ह्यूमन बॉडी. आपको मनुष्य का जीवन मिला. उठो 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 फटाफट. क्या स्टेटमेंट है?
देन उसके बाद शूरस्य धारा, शूरस्य धारा निशिता दुरतया। शुरा मीन्स ऐसा नहीं है कि उठ के जो कुछ करो, बड़ा ध्यान से चलना भाई। अब पहले तो उठो, बहुत बड़ा बूंद मिल रहा है, लेकिन अभी ध्यान से चलो। क्यों ध्यान से चलना है? चाकू शूरस्य धारा, जैसे शेव करते हैं ना, थोड़ा गलत हो जाए खून, हाँ, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। शूरस्य धारा निशिता, वेरी शार्प। I was seeing the meaning of Nishita. Some places it is very, very sharp. Some places it is rules and regulations. So anyway, Nishita, very sharp. Prabhupada says 2 times, very sharp. So Shurasya Dhara, Nishita. Shurasya means chaku, chaku. Dhara means the, what is the meaning of Shura? Chaku. Huh? Shaving. शूरा से शेवी बन गया, ठीक है। शूरा से धारा मतलब उसका जो ब्लेड है, निश्चित इट इज वेरी शार्प। थोड़ा गलती होगा, खच खच खच। अब होता है ना, सब्जी काट रहे होते हैं, थोड़ा गलती फिर इतना इतना बड़ा एक घाव आ जाता है। करेक्ट, सम पीपल है ना। काटा, मैंने तो कभी नहीं काटा, मैं तो देख के ही डर लगता है। शूरज से धारा, इसीलिए मैं किचन में नहीं जाता। शूरज से धारा निशिता दुरत्या। दुरत्या मतलब बहुत मुश्किल है। ये चीज़ एक बहुत ध्यान से रखना है आपको, बहुत बहुत शार्प है ये जिंदगी। ऐसा है कि आपने अगर नियम तोड़े तो खच, खत्म। शूरज से धारा निशिता दुरत्या। इसलिए ब्रह्मा को क्यों मिला आशीर्वाद? बहुत ही ध्यान से उसने गड़बड़ नहीं किया। उसने गड़बड़ करोगे खच कट। Then what is the last line? दुर्गम पथा। दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल है। पथा, ये जो रास्ता है ना वैकुंठ धाम का, ये आसान नहीं है, इसको आसान नहीं लेना। दुर्गम पथा यत कवयो वदंती। बड़े बड़े कव मतलब कवि, बड़े बड़े परमहंस लोग को भी कवि बोला जाता है। बड़े बड़े कवि बोलते हैं ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, वदंती, वो बोलते हैं इसको पहले तो उठो, सो नहीं, ये रास्ता है आपके पास, लेकिन ये आसान नहीं है। थोड़ा गलती करोगे खच खच। अब एग्जाम्पल बताओ जिनका खच खच हो गया। बहुत बड़े भक्त थे, गलती करी, 3 जन्म बर्बाद हो गए। कौन थे? भरत महाराज। 3 lives lost, Prabhupada unnecessarily. So advanced devotee he was in bhava stage. श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया पर एक स्टेज बचा था। परफेक्शन के बाद गिरने का चांस नहीं रहता, टोटल प्रोटेक्शन आ जाता है कृष्ण का। आप कभी भी, आप में क्षमता कभी नहीं है, क्षमता होती है कृष्णा के पास। आप जब पूर्ण शरण ले लेते हो तब गिर नहीं सकते, भगवान पकड़ लेते हैं आपको तब। करेक्ट, जैसे आप क्लाइम कर रहे हो, फाइनल भगवान पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने से पहले एक स्टेज बचा था, ये फेल डाउन। करेक्ट, आप कभी भी माया से युद्ध करने के लिए शक्तिशाली नहीं हो सकते। माया के सामने आप कुछ नहीं हो, एक थप्पड़ गिरोगे। जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण के शरण ले लेते हो तब माया आपको छू नहीं सकती। उसको बोलते हैं उत्तम भक्त। अपने आप में किसी में, जीव में कभी शक्ति नहीं हो सकती। जीव में शक्ति आती है जितने जोर से भगवान के पैर पकड़ता हूँ। अगर मैं शक्तिशाली बन गया, नहीं, तुम माया को नहीं झेल सकते। इसलिए भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि ही थॉट ही कैन टेक केयर ऑफ द डियर बेटर देन कृष्णा। क्या भगवान, कुछ लोग सोचते ना भगवान नहीं खिला सकते, भूखे मर रहे लोग, मैं खिलाता हूँ। जाओ 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 जाओ, भरत महाराज के लिए जाओ, जन्म लो आप। भरत महाराज, व्हाट ही वाज थिंकिंग, गॉड कैन टेक केयर ऑफ दिस डियर, सी आई हैव टू गिव अप माय साधना एंड टेक केयर। सम अनर्थ है इसे सुहृदम सर्वभूतानां। तू अपना काम करो, भगवान अपना काम करेंगे। कह रहे तुम अपना काम करो ध्यान से, ठीक है। बट एनीवे, he should have, Prabhupada analyzes, devotee discussed that what mistake Bharat Maharaj did. He should have consulted his guru. He was falling down, he should at that time, जब इतना मुश्किल हो गया था, उसको गुरु के पास जाना चाहिए था अपने को बचाने के लिए। गुरु उसको रोक देते उसमें। करेक्ट, क्या पागल को हिरन की तरह पूरे जंगल में ढूंढ रहे हुए उसको, उसका अपना काम है, छोड़ो, चलो एक बार ही उठा दिया, उतना तो होता ही है। पर दुख का दुखी, वैष्णव का दिल किसी का दुख नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसको उठाया, रखा, थोड़ा खाना, दैनिश्चर्या भी नहीं। ऐसी हालत आ गई थी उसको, भरत महाराज को, जो वो
वो अपना जप कर रहा है या मन में ध्यान लगा रहा है, और हिरण बच्चा उनको बहुत स्नेह हो गया था, अपने जो हिरण है ये उससे उसको पैर छूता था, और वो अपना वो सब बंद करके है। और उसके बाद एक डिवोटी ने बहुत अच्छी फ़ोटो बनाई है, अभी मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है, कि भरत महाराज हवन में वो डाल रहे हैं और उनका मुंह उधर है, हिरण किधर है मेरा हिरण। पूरा ध्यान निकल गया, सारा भगवान पे अटेंशन निकल गया, उसका अटेंशन हिरण पे आ गया। तो इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है कि वो अपने घर को छोड़ के क्यों आए फिर, अगर उसको इतना ही करना था तो घर के छोड़ के क्यों आए। देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन इज खटमल का एग्जाम्पल आई मीन 2-3 दिन से चल रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। खटमल जब आता है, किसी ने देखा है विंटर में खटमल? इट इज़ ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता ही नहीं है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, आई हैव सीन। एक ब्रह्मचारी था, वो उसको खटिया दी थी, बिना गद्दी बिना बेडशीट लगाए सोता था, तो मेरे रूम में था, खटमल आए थे फिर, तो जब पूरा एनालिसिस हुआ था उस खटमल का, क्योंकि उसके ऊपर सोएगा पूरा पसीना ये और सिर पे तेल सब लगेगा, तो फाइनली ये सब होगा तो खटमल तो आएंगे ही। तो मैंने देखे थे खटमल, शुरू में क्या होता है, पूरे ट्रांसपेरेंट होता है खटमल, यू कैन नॉट फाइंड आउट, इट इज़ बाय नेचर्स, बाय गॉड्स क्रिएशन, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब खून खाता है मोटा हो जाता है। तो सिमिलरली हम भी जब कृष्ण की सेवा में आते हैं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, खाली कृष्ण के 2 पैर बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे खटमल की तरह मोटे हो जाते हैं। हाँ, खटमल इज बेड वर्क। यू डिड नॉट नो खटमल इज बेड वर्क। ठीक है। सो एनीवे, सो भरत महाराज भी बड़े वैराग्य से आए थे जंगल में, कर लगे रहे थे, और फिर हिरण के पीछे खटमल की तरह मोटे हो गए, पूरा मन उसके पीछे, भोग हो रहा है, इसमें कृष्ण की सेवा क्या हो रही है, खटमल के तरह भग रहे उसके पीछे, खत्म। अपनी आनंद ले रहे थे, बड़ा मजा आ रहा है, हिरण के सॉफ्ट जो हॉर्न टच करता है इतना अच्छा लगता है, कितना स्नेह है उसको। अरे इतना स्नेह अच्छा लग रहा था तो घर को छोड़ के क्यों आए, वो तो बड़ा स्नेह था उधर। सारी बीबी रो रही थी, एक नहीं, राजा की तो बहुत बीबी होंगी, सारी प्रजा रो रही थी। एंड देन कृष्णा पनिश्ड इन द सेंस व्हेन ही वाज डाइंग, ही वाज थिंकिंग, पूरा जंगल ढूंढ रहा था वो, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, एंड ही फेल ऑन अ पिट, एंड देन व्हाट हैपेंड, राइट, thinking of the deer, किधर गया deer, and then he became a deer. So but Krishna was kind to him in this exception. Every rule is an exception, but we don't get that exception. जैसे आप भगवान को अपमान करोगे सीधा नरक जाओगे, लेकिन कंसा नरक नहीं गया बिकॉज वो थोड़ा भाग्यशाली था, भगवान ने आके मारा उसको। अगर आपको बहुत बड़े दानव भी भगवान को बुरा बोलते हैं, लेकिन 2 चीज़ होती है, एक तो ये दानव ऑर्डिनरी नहीं होते, ये सब कृष्ण की लीला के दानव है। जब वो बुरा बोलते हैं, सरस्वती उनके मुंह पकड़ लेती है, उनसे ऐसे शब्द निकलवाती है, वो एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ये हैव सीन दैट भागवत में, whenever Hiranyakashipu sees Narasimha Deva, he speaks something, Hiranyaksha speaks something to Varaha Deva, actually they glorify, because जबान पकड़ लेते हैं उनके, तो he speaks something else। उसका ही पकड़ा गया था ना, वो डिस्कस मेनी टाइम, किसका, कुंभकर्ण बोला किसको, ब्रह्मा को बोला था, कुंभकर्ण किसको पूजा किया था, ब्रह्मा का कि मेरे को, ब्रह्मा ने बोला क्या चाहिए, बोला मेरे को इंद्रासन चाहिए, लेकिन सरस्वती ने उसका जीभ पकड़ लिया, तो इंद्रासन की जगह उसके नाम से निकला निद्रासना, तो उसका सोने का बेड मिल गया, जा सो। तो सरस्वती उनका मुंह पकड़ के, एक्चुअली माँ सरस्वती बोलना चाहिए, उनका मुंह पकड़ के कुछ गड़बड़ करते, उनके मुंह से भगवान का अपराध निकलने नहीं देती वो बोलते हैं अपना बुद्धि लगा के, लेकिन वो उसका बुद्धि ऐसे कर देती है कि वो तो अपमान कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं भगवान की पूजा कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो लोग जब भगवान के हाथ से मरते हैं, भगवान का निंदा करके, जैसे कृष्ण और ने किया, शिशुपाल ने भी किया, करेक्ट, वो नरक नहीं जाते, बिकॉज भगवान के हाथ से मरने में उनको सब माफ़ हो जाता है। लेकिन हम लोग वो करेंगे, सीधा नरक जाओगे। तो ऐसा नहीं सोचना मैं भी शिशुपाल बन जाऊंगा, सीधा नरक जाओगे, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। वो तो उनका, दे आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन, उनको इमिटेट नहीं करो। So anyway, so Brahma did severe tapasya. This tapasya is very, very important. This is rigidly
कुरस्य धारा। सो जो मनुष्य जीवन है बहुत ध्यान से, एक तो बहुत बड़ा वर है, जगो उत्तिष्ठा, एंड देन उठो जगो, उत्तिष्ठा जागृता, दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है। पहले तो उठो, फिर उठ के भी हम सोए रहते हैं ऐसे, जगो, दो चीज़ बोलना पड़ता है। कभी कभी होता है किसी को उठाओ, वहीं बैठा रहता 2 घंटा, अरे जगो वहीं बैठा है सही। बूट होने बड़ा टाइम लगता है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, सिस्टम ऑन करो, कुछ कंप्यूटर 1 मिनट में बूट हो जाता है। कुछ लोग उठ के जैसे वो खाऊं मैं किस दुनिया में हूँ, हाँ, जैसे वो क्या होता है आपका पूजा के टाइम बोलते हैं ना, भारतवर्ष है जम्बूद्वीप है, पूरा उसको समझाना पड़ता है, जम्बूद्वीप में है, भारतवर्ष में, इस खंड में, पूरा एक एक चीज़ उसको याद नहीं रहता उसको, हो मैं इधर हूँ, उसको 1-2 घंटे लग जाते हैं उठ के बूट होने में। कुछ लोग उठ के रेडी हो जाते हैं। तो जगो और उठो, दोनों चीज़। उसके बाद आप बहुत बड़ा एक वर प्राप्त कियो। ये बहुत अच्छा श्लोक है एक्चुअली, इसको आप सब लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। याद है आपको? सब याद कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इट इज मिसयूज्ड, मिसइंटरप्रेटेड, मिसअंडरस्टूड बाय होल सोसाइटी। सब जगह दिखता है मेरे को, कहीं भी जाते हो, वेक अप, अराइज, सब जगह लिखा रहता है। अचीव, वर्क हार्ड टिल द गोल इज अचीव। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? तो उत्तिष्ठ जागृता प्राप्त वरम निबोधा। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, एक बहुत बड़ा। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? खुरस्य धारा, शुरस्य धारा, हाँ, शुरस्य धारा निशित दूरत्या। शुरस्य धारा, ये तो नाइफ का शार्प एज है, निशिता दूरत्या, बहुत मुश्किल बात है। ध्यान से करो, ध्यान रखो, बहुत डेंजरस है। एंड देन लास्ट लाइन, दुर्गम, दुर्गम पथा, ये जो रास्ता है वैकुंठ धाम का, गोलोक धाम का, ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है। वदंती कवया, बहुत बड़े बड़े सेंट जो हैं वो बोलते हैं इस पर ध्यान से चलने का। थोड़ा गलती हो गया, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको आसान में नहीं मानना चाहिए। आसान भी है लेकिन आसान नहीं भी है। सो कुरुष्य धारा, इट इज़ वेरी वेरी शार्प। सो रिजिडली वी हैव टू, कृष्णा कॉन्शियस वी हैव टू फॉलो रिजिडली। आप जितने भी एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी ब्रह्मा का एग्जाम्पल है, सो रिजिडली हैज फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। In fact, Goswamis also, they went to Vrindavan and they were so rigidly performing rules and regulations. It is said that he used to, Raghunath Das Goswami, when he was in Vrindavan, he used to offer 2000 टाइम वो वैष्णव को नमस्कार करते थे हर दिन। कितने बारी? 2000 टाइम। और 1000 बारी भगवान को नमस्कार करते थे, और 64 माला हर दिन गिन के जप करते थे, और हर दिन आधा ग्लास बटर मिल्क पीते थे, बस। बहुत पतले थे। दैट इज रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी में से, सो ग्रेट डिवोटी। क्या मतलब? कोरस से बहुत ही रिजिडली ही वॉज फॉलोइंग। वेरी प्रॉपर सेज, वेरी रिजिडली वी शुड फॉलो। We should not take it very lightly. We have a tendency to take very lightly, very rigidly. Then we get benefited. Then Krishna is very impressed. Because Krishna, we saw very recently, Krishna said, very rarely I am pleased by the imposters. Hey Brahma, I am so pleased with your devotion. So Krishna has to be convinced you are really sincere to serve him. And if you are not sincere, we were discussing that quote, that Maya actually tests whether you have come to serve Krishna or you have come to disturb Krishna. This Maya is going to test us. क्या आप कृष्ण की सेवा करने आए या कृष्ण को आप डिस्टर्ब करने आए? Because impostor, Krishna feels disturbed. Correct? You cannot go into the presence like there is an example. Sarup Damodar used to test if anybody is going to offer some poem to Lord Chaitanya, whether it is authorized. He used to check. And he caught one Brahmana having a wrong composition. And he blasted him. What are you doing? What you have written nonsense. You know the famous instance, no? So Damodar used to check. Whatever they write some composition, before they recite in front of Lord Chaitanya, he used to check whether it is written some nonsense or it is. So similarly, Maya is checking whether this person is going inside to serve Krishna or to disturb Krishna. Correct? Suppose there is an altar or temple. At a gate, somebody sitting, no. Why Jai Vijay all are sitting? What is the purpose?
They check whether this person is going to serve Krishna or going to disturb Krishna. When they saw four boys, they said what they will do, they will simply disturb. They misunderstood because they have some adhuta. But the essence, they are doing something, no? What are they doing? They are wanting to see whether this person is going to disturb Krishna or is going to serve Krishna, correct? All the 7 gatekeepers, one by one they check. So if you want to enter into Krishna's presence, 7 times they will check you, whether you are sincere to serve Krishna or you are going to disturb Krishna. And what we will do now? Simply disturb. Simply disturb. And we disturb. We were there. Kicked out by all this Duta, Jai Vijay, all the, बाहर निकलो, पकड़ के निकलो बाहर, इसको फर्स्ट गेट वाला बाहर निकाल के दूसरे को देखे, इसको फेंको. I'm just speculating. Second, इसको फेंको बाहर, ये कर रहा था, the material world. Just like Jai Vijay was sent, correct? Last gate, 7th gate. So first Jai Vijay will catch your hand, nikal, then they will throw the second one. There are names of all of them. Names of all of them. All the 7 have the names. Huh? No, pakad ke khicha. He is saying, nahi, humko bahar nikalne ka man nahi tha. Yes, that is also one. You can take it like that. Either way. He is saying it is not so inglorious. It is glorious. I came by myself. Ichha dvesha samutena. Anyway, by our ichha we came. So this is, therefore we have to very rigidly, Krishna consciousness we have got. Prabhupada used to say, now don't fall down. You are so fortunate. Many lectures Prabhupada said this. You are so fortunate to come into Krishna consciousness. Now don't fall down, please. Now don't fall down. Be firm, sincerely. And always remember, strength will not come by something. Strength comes by tightly holding on. Prabhupada says, now tightly hold on to the lotus feet of Krishna. Now you have come to Krishna consciousness, tightly hold on. That will give you strength. Sometimes they think, I'll get strength. You have no capacity. What are you? You're nothing. Tightly hold on. Beg Krishna that I may not leave your lotus feet. Okay. Krishna will give you the strength. Correct? What do you say? Anna? We can independently, we are nothing. We are only sense gratifiers. So tightly hold on to Krishna's lotus feet so we get strength. Then we can rigidly follow the rules and regulations. And he says in this verse, is that tapasya is part of the internal energy. It's not external energy. Therefore you have to get it from Krishna. Correct? External energy, so we are loaded with external energy. वो तो भरा हुआ. By your ahankara you cannot do anything. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare